Assalamualaikum dear students. Let's discuss another topic that is related to gases again, related to the property of gases, that is diffusion of gases. Chat Kashir purchase here topic one that gases intermix freely. मतलब अगर इस कंटेनर रटो separated by a lid यथा को लिखित this is lid, here we remove it. मतलब ज gases छु अख छु hydrogen gas which is colorless, ब्याक छु nitrogen dioxide which is reddish brown. याथ म छु nitrogen dioxide, याथ म छु hydrogen separated by a lid. यतिन छु डखना यम छु ज कंटेनर इत पट थयत मगर मज कन छु डखना मिक्स तुत नसवन गसन की छ ठीक. The moment we remove the lid, we observe that the two gases intermix each other as though yemis gases gas yemis sit mix. Now yemis gas yemis sit mix. ये खुद without the help of any external agency they are able to mix each other. हाँ, external agency का काम क्या है? सिर्फ इस lid को remove करना, फिर उसके बाद कोई रोल मेरा नहीं है. The moment I removed the lid, the two gases क्या intermix each other. This intermixing of hydrogen and nitrogen dioxide forming a uniform reddish brown mixture without the help of external agency is called diffusion of gas. Yittu chu diffusion of gas. इंटरमिक्स कर विदाउट मेरी हेल्प कहाँ तक है? सिर्फ इस लिड को रिमूव करने में. उसको हेल्प नहीं बोलते हैं. लिड सत ऑब्स्ट्रक्शन सो तुल सो थोद तम पत छुन में ना यमिस दापुन सो खस छोर ना यमिस वनन सो वास बोन ना वन यमन इंटरमिक्स गछो यम गसन ऑटोमेटिकली. सो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी दे इंटरमिक्स विद ईच अदर. After removing lead, leading to the formation of a reddish brown precipitate. वो NO2 to O2 root when intermix go, yours colorless, yours colored go automatically. So the color gets visible go sorry container. Dhanway container बनी when reddish brown precipitate. तो आप note लिख लो. The property of intermixing of gases. The property of intermixing of gases is referred to as diffusion. The property of intermixing of gases is referred to as diffusion. आगे लिख लो. Diffusion may be defined as the process of intermixing of two or more gases without the help of any external agency. Without the help of any external agency. Full stop करके नीचे लिखो. Diffusion is the rapid movement of gas molecules. Diffusion is the rapid movement of gas molecules full stop when the two gases are brought in contact with each other. When the two gases when the two gases are brought in contact with each other, the molecules of one gas, the molecules of one gas move into the empty spaces of other gas, and this ultimately leads to formation of a homogeneous mixture.
and this ultimately leads to formation of a homogeneous mixture. तो simple सी बात है, diffusion is a property of gases in which the two gases are able to intermix with each other, leading to the formation of a reddish brown precipitate. Go your pike volume continuously bone kun, volume of hydrogen gas bone, your has continuously occur kun, with the result the two will intermix, leading to the formation of a homogeneous mixture of NO2 and H2. The mixture will be of कौन सा color, reddish brown. सीधी सी बात. Fine. तो एक और सब टॉपिक लिख लो इसी में, ईगो डिफ्यूजन. डिफ्यूजन सीधी चीज इस पारा क्या गो इफ्यूजन. Effusion is a process. क्या? If लिख लो. Effusion is a process by which a gas. Effusion is a process by which a gas under pressure escapes. By which a gas under pressure escapes from a vessel through a small opening. Escapes from the vessel through a small opening. अच्छा ठीक. फॉर एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन, एक बलून है, उसमें होल हमने कर दिया. द मोमेंट होल उसमें हो जाएगा, the gas present in the balloon will effuse out. We will use the term the gas present in the balloon will effuse out when a small hole is made in the balloon. Clear? तो example लिख लो. Air escaping from a punctured tire or balloon are common examples of effusion. Are common examples of effusion. और simple effusion क्या छु? थोड़ा इतना कंटेनर, इसमें एक होल रख दिया आपने, सिंपल छोटा सा लेकिन माइन्यूट होल. ये एक किस्म होल है, अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ भी होल ही है. ये लिड बर्ड कर रिमूव कर बनो होल. मगर यात होलस तो यात होलस क्या फर्क यूजुअली गई समझुन. डिफ्यूजन होल कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज. ठीक. इफ्यूजनस में होल स्मॉल, ये भी एक डिफरेंस है. ठीक. वो अगर एक स्मॉल होल रख देंगे, ये गैस थी इसमें, इट विल कंटिन्यूसली ट्राई टू इफ्यूज आउट. इस फिनोमिनन को, इस प्रॉपर्टी ऑफ गैस को कि एक स्मॉल होल से बाहर निकल जाती है, इज कॉल्ड इफ्यूजन. ये हम इसलिए पढ़ रहे बिकॉज हम गैसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें हर कोई प्रॉपर्टी उसकी पता होनी चाहिए. हमें उसका पार्शियल प्रेशर निकालना आना चाहिए, हमें टोटल प्रेशर का पता होना चाहिए, हमें प्रेशर का आइडिया होना चाहिए प्रेशर क्या हो. हमें यह होना चाहिए पता कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की क्या रिलेशन है. PV = nRT कब अप्लाई करेंगे. अच्छा ठीक. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्या गो. इथे पट अगर गैस अगर तथ लीड मज कन इंटरमिक्स गसनस अत क्या वन, अत वन डिफ्यूजन. अगर बलून तथ कोर लकुट होल, सो बलून विदिन नो टाइम गसान इफ्यूज आउट, गसान कंट्रैक्ट, अत नीर गैस सोरी नेबर. अत प्रोसेस क्यों वन, अत वन इफ्यूजन. क्या दिस होल इज रिलेटेड टू गैस. आपने होप आपने डेफिनेशन नोट की होगी. अब जो इंपॉर्टेंट हमारा है दैट इज कॉल्ड, ये तो मैंने पहले डिफाइन कर लिया डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या हो, ग्राहम्स, यस पारुंचो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. गोनिच का लॉ छु दानवनी पे अप्लाई. डिफ्यूजन असन या इफ्यूजन असन, अक इक्वेशन छ दानवनी खतर. क्लियर. तो समझ लो क्या छु वनान ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. यह कशर पे दिवान रेट. क्या दिवान रेट. वन तो रेट क्या गई गॉड. मैं बोलूंगा किसी को रेट ऑफ दिस पर्सन हु इज रनिंग, तो इस टाइम मेरा मतलब है वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम. अब बात आ गई समझ. गो डिपेंडिंग रेट का है क्या, मैं किस सिचुएशन में बता रहा हूं. अब सीधी सी बात है, इफ्यूजन है डिफ्यूजन है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस निकल रहा है. अब किस टाइम कितने टाइम में निकलेगा, दैट डिपेंड्स कि इसकी रेट क्या है. अगर कम टाइम में कि ये बलूनों से क्या
क्या ठीक अत मज यह समझा पे यह बलून एक होल है इसमें छोटा सा फाइन इसमें से ये बनी किडनी हिश इसमें से निकल रहा है फाइन लेकिन इसमें से गैस ए है ये ब्याक बलून अच्छे से समझ लो इसमें से फ्यूज आउट हो रहा है इसमें गैस भी थी अब मैं बोल रहा हूँ ये कम टाइम में ही कंट्रैक्ट हो गया मतलब आई द्रा सोरी गैस विद इन नो टाइम मगर यह लोग अच्छा खासा टाइम तो किसकी रेट ज्यादा जो लेस टाइम में कंट्रैक्ट हो गया या डिफ्यूज्ड इसमें ज्यादा टाइम लग गया मोर टाइम टेकन टू डिफ्यूज अच्छा ठीक वन तो रेट कमिस ज्यादा सर युस कमस टाइमस मजी सोरी नेरे तमें मतलब गो इस वाले गैस में इफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुई अगर इफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुई तो ये बहुत जल्दी से भाग रहा है तो ऑटोमेटिकली इसकी रेट इज हाई तो ऑटोमेटिकली जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो बहुत जल्दी से भाग नहीं रहा है तो उसकी रेट लो है सुधी का था सर ये बहुत तेज लड़का दौड़ रहा है तो इसकी डिस्टेंस बाय टाइम बहुत ज़्यादा होगी सर उसका मतलब इसकी रेट ज़्यादा होगी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ठीक रेट वेलोसिटी आसान ये यूत जल्दी नेर तीस रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा यूत ज़्यादा टाइम लागे नेरनस तूता अमिस रेट ऑफ इफ्यूजन कम अच्छा नहीं है इफ्यूज होने में ये क्योंकि ये टाइम ले रहा है अच्छा ठीक वो रेट को अगर हम डिफाइन करें इज सिंपली ठीक है समझो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड ममा करो डिस्टेंस ऑफ द गैस इस पर वेलोसिटी मन डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम रोज ये तिथाई पर मगर ये प्रॉपर्टी हिसाब दिन न्यूमरेटर सह गो कूता हिस्से यमुक कूता वॉल्यूम गो अत नेबर नीर कथ टाइमस मज यूता ये टाइम कम लगे तमिक मतलब गो तूत जल्दी द्राव तीज रेट हाई यूता वॉल्यूम ज्यादा नेरे तब मतलब गो अच्छो धड़ो धड़ गैस नेरा थ्रू दैट लीक तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जितना कम टाइम में निकलेगा उतना ज्यादा रेट अच्छा ठीक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आपको तो रेट इज सिंपली V by T rate of diffusion or effusion so higher the volume diffused or effused more is क्या rate got point lesser the time taken to diffuse or effuse more is रेट है सही छा टाइम छा ये समझ क्या गो टाइम लेसर द टाइम मतलब गो ये बलून या गोडोस फुल वॉल्यूम उसमें क्या बोर्ड इन नो टाइम गो ये कंट्रैक्ट फ्रॉम फुल टू गेटिंग कंट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स दिस टाइम टी तुम 3 सेकंड तुम 5 सेकंड अगर ये 5 या मे बी 10 या कम टाइम लोग डिफ्यूज गस तब मतलब गो अत द्राव गैस जल्दी मतलब गो रेट छस high so higher the volume higher will be the rate lesser the time taken to diffuse or effuse lesser will be the more will be the rate you guys sound yaad go Graham's law of diffusion and dut aise ye law in terms of rate wan kya pati diva ik ditno god idea to yos term yat Graham's law of diffusion mas gasi use so go diffusion to effusion so kar mein god excellent tam pat dopun rate so kya ge rate so samjho clear hai idhar tak koi shak boost ho rate ला क्या बना लिख दो अंडर दिस ला स्टेट्स गुड लिख दो दिस ला कुछ ला ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दिस ला स्टेट्स दैट फिर लिख लो क्या अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट आई तुम बे तुम पानी कंडीशंस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and pressure under similar conditions of temperature and pressure comma the rate of diffusion of gas the rate of diffusion of gas तो क्या diffusion ती का प्रॉब्लम कहीं तन the rate of diffusion इसी का था इतन छु अत लास मन छु रोजान मोर
concerned regarding the diffusion magar samajho ki lagas apply to effusion also. The rate of diffusion of gas achan problem kahin. The rate of diffusion of gas is inversely proportional to the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. The rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its density. This law can be mathematically put as this law can be mathematically this law can be mathematically put as rate is inversely proportional to square root of density. Density kya chhe? Density time gas is use kya gasan diffuse out. Where r kya chhe? Where r is rate of diffusion, d kya chhe? Where d is density of the gas. अच्छा ठीक है कोई मसला है वन अगर दोन गैसन हूं कंपेयर करो डिफ्यूजन अच्छा ठीक अस वनो गैस वन इसकी डिफ्यूज इसकी रेट है R1 अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी D1 फाइन इशू लॉ वन कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा तेरी डेंसिटी होगी उतनी कम तेरा डिफ्यूजन होगा यह लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड मगर कत कंडीशंस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या केप्ट कांस्टेंट अगर इस कंपेयर करो दोनों क्या ठीक यह कर लगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोन गैसन कंपेयर करो क्या ठीक कित पट मे रोट गैस तम थम डेंसिटी D1 तमिस टेम्परेचर तो प्रेशर से यूता अम पत रोटुम गैस सेकंड तमिस थोम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर what can I say under constant temperature and pressure. When I am comparing, then I can use this term under constant conditions of temperature and pressure. So in gas 1, temperature is T, pressure P. In another gas, temperature again T, pressure P. So here rate is R2, again inversely proportional to the density of gas 2. Koi shak if I can compare them. Back it and but rate is equal to K by rate is R1 is equal to K by D1, R2 is equal to K by D2. And after dividing the two, R1 by R2, so K guys cancel big by D2 by D1. Remember this. R1 by R2 is equal to D2 by D1. But the two gases have T and P same. Remember this. So I can compare the rate of diffusion of two gases which are having different densities. One gas is having density D1, another gas is having density D2. कोई शक काइंडली होना नहीं चाहिए. Simple one. अख न्यूमेरिकल दिम अथी मतलब क्या छ यमिक the relative rate of diffusion of ozone as compared to chlorine is 6:5. Full stop. Is to thoma go till 6/5. If density of chlorine is 35.5, find out density of ozone. इसको करो अगर इन बाकी टेम्परेचर एंड प्रेशर कहें तो वोनमुत तो आप समझ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट सेम क्या वन सर आर ऑफ गो गैस कुछ ओजोन बाय आर ऑफ Cl2
हज आसी बराबर D of Cl2 by D of O3. कोई शक इसमें? नो सर. R ozone by R Cl2 बदल क्या लिखा? The relative rate of diffusion of ozone as compared to Cl is 6:5. को यहाँ बदल क्या लिखा? So 6/5 is equal to root of density बदल chlorine is कितना? If the density of chlorine is 35.5 divided by density of O3. यह का मसला. Squaring both sides, answer खत्म. ये गैस और cancel याद गैस 36/25 पत करतस DO3 multiplying values से nearly so the density of O3 as 24.65. It solve. Go, we are able to find the density of ozone. और अवन अगर density ऐसा given, अगर ये rate ऐसा नहीं पता कि ऐसा कोई rate नहीं. ठीक. Ratio of rates is given, the relative rate of diffusion as compared to diffusion 6:5. मतलब go ratio of these two rates is 6/5, which is as per Graham's law of diffusion, density root of dCl2 by dO3 under ideal conditions of temperature and pressure, density of chlorine was O3. अब बात आ रही है समझ. This is how you apply Graham's law of diffusion, which is R is inversely proportional to square root of density. ये जो मतलब आइडिया था. आगे बढ़ते हैं. Through this condition पर under same conditions of temperature and pressure kept same. Under same conditions of temperature and pressure, you should know that molecular mass is always twice the vapor density. But cost condition, identical conditions of temperature and mass, molecular mass of gas is twice than its density. तो आप in terms of molecular mass भी define कर सकते हो. वो R1 by R2 कथ से बराबर D1 by D2 का कोई शक है छाका तूफाना. Therefore R1 by R2 D1 बदल क्या लिखा? M1 D1 बदल. Therefore इतने को तो लिखा density is equal to M by 2. Therefore D1 is M1 by 2 into D2 बदल क्या लिखा? Molecular mass of gas 2 by 2. रूट पढ़ने जाए 2 to 2 क्या गए? Cancel. Therefore R1 by R2 का थी बराबर M1 by M2. ठीक. इगो ये थे density is M by 2. ठीक. तो density के बदले D1 के बदले M by 2, D2 के बदले M2 by 2. ठीक. ये बने root of M1 by M2. So under similar conditions लिख लो under similar conditions of temperature and pressure, comma शाबाश लिखो, the rate of diffusion of gas शाबाश. क्या वना law, क्या वना Graham, क्या वना सो experimentally prove करित, the rate of diffusion of gases वंचन दोन हिंस कथ करा. The rate of diffusion of gases are inversely proportional to square root of their molecular masses. Are inversely proportional to the square root of their molecular masses. तुहंद हिसाब तेल कुस गैस गैस डिफ्यूज जल्दी सोदी कथा यमिस molecular mass ज़्यादा ओस. Rate is inversely proportional to the molecular mass, root of molecular mass. अगर molecular mass ज़्यादा होता है मतलब कोई गोब यूथ गोब diffuse गसन intermix गसन छु मुश्किल बे बिचो ना बस बे हम अलग बनस गसन mix गो यूथ molecular mass ज़्यादा सी. Higher the molecular mass, lesser will be the tendency to undergo diffusion, lesser will be the rate of diffusion. जितना हल्का होगा उतना जल्दी वो diffuse भी हो जाए. ठीक है. Fine. So R1 by R2 is equal to root of M1 by M2. एक ये किस पर apply करन देख लो क्वेश्चन. 7. Compare rate of diffusion of uranium 235 F6 and isotopes आसान uranium 238 F6. ये क्या होता है मन चेक रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक. अत डेंसिटी दित ना सह हेक पान कड़ित ना तेल क्या हेक मॉलिक्यूलर मास सोद कथा बे क्या टेम्परेचर प्रेशर कह दित ना. तो यू हैव टू अज्यूम दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट सेम.
चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे क्या लिखे हम फिर, देयरफॉर पहले में लिख लेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मास किसका, U235 F6 कितना आ जाएगा, यूरेनियम और 235 फ्लोरीन गो 6000 कुनवो सु गो 349 molecular mass of U238 F6 गो बेये 238 plus 6000 कुनवो सु गो 352 गो 38 वाले का है 352, 235 वाला का मॉलिक्यूलर मास है 349। कोई इश्यू इसमें क्लियर होना भी नहीं चाहिए, देखते जाओ। चलिए रेट का दिन बराबर में, शाबाश, रेट में दे दूंगा इसके बराबर, रेट इज R1 by R2 is equal to root of D2 ने क्या D में लगी मॉलिक्यूलर मास M2 by M1 ईच हो, क्लियर। R1 के बदले में यूरेनियम 235 वाला लूंगा, R2 के बदले तीसरा कारण और R2 के बदले यूरेनियम 238 इका दिमो बराबर मास ऑफ 238 by मास ऑफ 235, क्लियर है तक। रेट से क्या दिस और कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन वो छांडुन R235 by R238 की वैल्यू छांडुन इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 238 कुता द्रा गो भी बोल क्या द्रा ये 238 बोल द्रा 352 गैमिक मॉलिक्यूलर मास क्या द्रा दें 349 सुनिए रे देयरफॉर R235 by R238 इज इक्वल टू 1.004। तो उसी को हम बोलते हैं ऐसे, फिर हम लिखते हैं ये तो इज टू सुना तो चैनल में क्वेश्चंस मजा सोच माना कि ये द रिलेटिव रेट ऑफ द टू गैसेस इज 1.004 इज टू 1 क्या इसके में सुना ला दे कि अगर मेरे डिवाइडर्स में ऐसा क्या वैल्यू लाइक 4/3 तेल वना द रेशियो द रिलेटिव रेट ऑफ द टू गैसेस इज 4:3 मगर सिंस में चुनियत की तय मतलब को बहकत एज्यूम करित इट इज सिंपली दिस बाय 1 ही कथा तो इज टू 1, क्लियर है। हाँ अगर तुम डिवाइड आशा बाज़ाब्त का नंबर 2 तेल था 1.004 इज टू 2, चलिए क्लियर। सिंस मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया मैंने डिवाइड में नहीं रखा, फाइन, कोई शक, तो ये मुझे आ गई रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस एंड दिस मींस आपको रेट निकालनी है ये दिस एंड दिस, तो आप आंसर बताओगे दिस ऑप्शन, क्लियर। तो ये कोरस ब्याक प्रॉपर्टी एमिज एक्सप्लेन, चलिए तो देखते जाओ। गो विन पोरस R1 by R2 is equal to D2 by D1 before R1 by R2 is equal to root of M2 by M1 where M and D are molecular masses and densities। कोई शक, हाँ हम पता कर यमनी इक्वेशन में अख चीज सानो रेट कथ में बराबर आसान सपोज V by T is the time, तो कोई तूफान है नहीं, क्लियर है। तो R1 किसके बराबर होगा, देयरफॉर R1 होगा बराबर V1 by T1। R2 किसके बराबर होगा V2 by T2 where V is the volume, T is the time taken in getting diffused। so R1 by R2 अगर बकार तिल क्यों बन R1 by R2 ये बन V1 by T1 ये बन V2 by T2 सुपान का बराबर D2 by D1 सह पान ऐसे बराबर M2 by M1। अभी देखा ना हमने ये सारा प्रूव करके D2 by D1 से ही हमने निकाला M2 by M1। कोई शक, फाइन। अब आपको एग्जामिनर ये ला दे के पूछ सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, वो V1 by V2 रेशियो ऑफ द वॉल्यूम डिफ्यूज्ड V1 by V2, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन T1 by T2 या T2 by T1 वो डिपेंडिंग आपको अब वो पूछ क्या रहा है।
अब बात आ रही है मेरी समझ कि नहीं? तो जा रहा है दिमाग में कि नहीं? बताओ। बात आ रही है समझ? क्या छो यहां समझ? क्वेश्चन आ दिम ये पे अच्छे से देख लो क्वेश्चन। 50 वॉल्यूम्स अस मा यूनिटुक मसला आसान ये कि ये हेर आस यूनिट सन कह सह यूनिट गम सिंदिस कह यूनिट सत कैंसिल गो वॉल्यूम का यूनिट का मसला नहीं है। तभी एग्जामिनर देखो क्या बोल रहा है 50 वॉल्यूम्स पाई यह 50 ml यह 50 लीटर गोमुत डिफ्यूज तीन कहें जो भी हुआ जो इसका यूनिट रखूंगा वही इसका भी देखो क्या बोलेगा। 50 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ना सोदी हाइड्रोजन H क्या ठीक 50 volumes of hydrogen take monoatomic hypothetical example at take 20 minutes to diffuse out how long will 40 volumes of oxygen take to diffuse out under similar conditions. So क्या होगा similar conditions? Temperature and pressure from the same container. Container जो same है क्या ठीक है? इस क्या वनो सर R of क्या वनो सर R of H2 by R of O2 ये वनो सर will be equal to वन क्या वॉल्यूम टर्म तेल सर VH2 by TH2 into VO2 by TO2 यह जी बराबर सह कर डेंसिटी वाचन ये यूज ये जो ना एक ही ये भी कर सर कर डेंसिटी वो सर डेंसिटी छन पाई कर कप सर बस करे मॉलिक्यूलर मास वाचन यूज सो क्या गो RH2 च हिरकन तेल च MO2 हिरकन लिखन तो MH2 बोन कर थावन अच्छा सही अच्छा सही मैं क्या दित बे यह इक्वेशन गछा मैं क्या जोन वन वॉल्यूम वोल हिस्से यथ मज कन क्या और वॉल्यूम वोल चीज वॉल्यूम तो टाइम दे तवे ओन वॉल्यूम तो टाइम ये कचा 50 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टेक 20 मिनट्स 50 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टेक 20 मिनट्स multiply by how much time how long will 40 volume go how long go time of oxygen will 40 volume go 40 volume तुम 40 लीटर मिलीलीटर अगर तन लीटर तेल ये ठीक सिंस ये क्या यूनिट मिनट तेल क्या में टाइम थी मिनट ये क्या थी बराबर यह रेट यह द्राव यह रेशो गो यथ रेट बराबर ठीक गो मे रोट यह हिस्सा तो बे सूच में बराबर ये अगर मैं रेट यह गिवन और तेल आसा बह यम त यूज कर बह ांडा यह रेशो आ मे और गिवन बह करा यह तो बे यूज सिंस यह मे वन पता कहें तवे कर बह यूज बे यह क्या कर यूज क्या यह पता ऑक्सीजनस क्या मॉलिक्यूलर मास 8 8 गई 10 कि 32 ठीक तो हम इसको भी मोनो एटॉमिक ही यहां ले लेंगे ओ ही ये लेंगे तेल को मॉलिक्यूलर मास 10 O2 न क्या ये तो ये गो मैं बे ये क्वेश्चन अमे आए हाँ रियलिटी में O2 आएगा लेकिन अब इसने मोनो एटॉमिक एक लिया है क्वेश्चन ठीक तो H एंड O ऑक्सीजन का क्या आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे O का सर O का एटॉमिक नंबर 8 है डबल होगा मॉलिक्यूलर मास 16 हाइड्रोजन का हमेशा 1 ही होता है हाँ H2 अगर होता तो 2 होता O2 अगर होता तो 32 होता फाइन ये शुरा बयाक वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन सिंगलुक मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन सिंगलुक इज 1 ते शुरा ठीक तो नीर टाइम
या आराम साना गस नेरुन सु कुता नेर therefore T of oxygen near so the 64 minutes. So time taken by oxygen to diffuse 40 volumes will be 64 minutes. कोई तूफान है नहीं, simple. मैं क्या कर ये इक्वेशन यूज ये ती पन्नी यह क्या चोनमस मज कन यह हेकान एप्लाई कर मगर यथ क्वेश्चन मज क्या चोन बाकियन मज क्या तिमन मज वॉल्यूम तो टाइम डिस्कस कहें तन ये आव वॉल्यूम तो टाइम ऑटोमेटिकली छान तवे टाइम तवे चोन यह मज गो ये बने कंबाइंड इक्वेशन. अब डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है. अगर आपको R1/R2 गिवन है, आपको निकालनी है D2/D1 तो आप ये दो यूज करोगे, इन दो के बीच में इक्वल साइन डाल दोगे. अगर आपको M2/M1 पता है और निकालना है T2/T1 तो आप ये इक्वेशन और बीच में इज इक्वल टू ये डाल दोगे. अगर आपको V1/V2 निकालना है या T2/T1 निकालना है लेकिन पता है डेंसिटी तो आप एक ये और ये करोगे. अगर आपको T2/T1 निकालना है लेकिन गिवन है रेट R1/R2 तो आप ये और ये के बीच में इक्वल टू साइन. अब ये आप तक है, आप इस दो को यूज करो, इन दो को यूज करो या इन दो को यूज करो या इन दो को यूज करो, डिपेंडिंग आपको एग्जामिनर मांग वहां से क्या रहा है. हाँ, ये एक कंबाइंड इक्वेशन है, बट रिमेंबर अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट सेम. रिमेंबर, कोई शक? क्लियर? न्यूमेरिकल्स तो हम बात आगे. सो वॉल्यूम जेल कथ आए तेल यह इस्तेमाल कर. अगर वॉल्यूम डिस्कस अगर टाइम डिस्कस तेल सोदी रोजन साइलेंट. तेल R1/R2 is equal to D2/D1 is equal to root of M2/M1 under ideal conditions of temperature and pressure. कोई शक होना भी नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. क्लियर है इधर तक? हाँ, अब अगर एक मसला बन गया, अब अगर हमें यही कंपैरिजन करना है किसका, जो हम अभी तक कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन मगर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब आइडेंटिकल नहीं है, अब क्या करोगे? चल ठीक, तो ले लो पहला केस. पहले केस में हम लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इस केस में अब हम क्या फिर वेरी करेंगे? प्रेशर. तो लिख लो नीचे, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ. ये भी हमने ग्राहम नहीं हमें दिया है. अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, according to Graham's law of diffusion, rate of diffusion of a gas at constant temperature is directly proportional to its pressure. Be panun go asti su kya go is directly proportional to its pressure as well as inversely proportional to the square root of its density या molecular weight. याद है? तो हम बोलेंगे इस कंडीशन पे R is directly proportional to P, but at the same time we know R is inversely proportional to root of D or root of M. each हो अच्छा मसला, तो therefore we can say R is directly proportional to P by root of M. कोई शक? For the two gases, if we compare the two gases, then it will be R1 by R2 equal to sin E1 is P1 by root of M1 into इधर क्या है P2 by root of M बल तो थी डेंसिटी थे मैं वन. या इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 by P2 into root of D2 by D1. इसे ही सीखा था, सॉरी इसे ही सीखा था. क्लियर? तो अगर आपको कोई बोलेगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर बट एट वेरिंग प्रेशर द रेशियो ऑफ द प्रेशर इज P1 by P2, वो वैल्यू गिवन होगा और डेंसिटी का भी वैल्यू गिवन होगा इको D2 by D1, और या मॉलिक्यूलर मास का रेशियो गिवन होगा P1 by P2 का वैल्यू गिवन होगा, तो आप सीधे निकाल सकते हो R1 by R2. कोई तूफान है ये? नहीं, काइंडली होना भी नहीं चाहिए. अच्छा क्लियर छा? गुच्छा अगर प्रेशर आसी वैरी गसान सोचने तेल वैल्यू दितमुत इतने 10 ATM इतने 15 ATM.
ठीक ठीक गो सोदी कथा यूत ज्यादा क्या प्रेशर अकिस कंटेनरस मज तूत ज्यादा हेक डिफ्यूज तम मज हेक बेकिस कंटेनरस मज जल्दी मिक्स तक सोदी कथा यूत ज्यादा प्रेशर आ सो वन बह नेरहा अम मज तूत जल्दी गो इफ्यूज आउट बह नेरहा गो हायर द प्रेशर हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सही है, क्लियर है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्टर। अब क्या लिखेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या करें हम दूसरे केस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें आप लिख सकते थे इस केस में एट कांस्टेंट टेम्परेचर में दैट इज इफेक्ट। आप किसका देखना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दैट इज हम देख क्या रहे हैं दूसरा केस में, केस सेकंड में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तला वन तो क्या है, यू टेम्परेचर ज्यादा तूत क्यों गैस सो तूत तुल वाटर तूत दप सो बनियर तूत गैस रेट डिफ्यूज। सही सी बात है, लिख लो नीचे, इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, if the rate of diffusion था ये तंते में डिफ्यूजन नहीं तो इफ्यूजन लेके मसला क्या है, if the rate of diffusion or effusion of the two gases are compared at different temperatures, if the rate of diffusion of the two gases or effusion of the two gases are compared at different temperatures but at constant pressure, then rate is directly proportional to temperature, square root of temperature, then rate is directly proportional to square root of temperature as well as inversely proportional to molecular mass or density। सही है, as well as inversely proportional to square root of molecular mass और density, यहाँ दोनों में स्क्वायर रूट है तो आपको रेट किसके बराबर आ जाएगी, रूट टी बाय एम। ये रूट टी क्या है, टी इज टेम्परेचर। अब टाइम, इस वक्त हम टाइम की बात नहीं कर रहे, टेम्परेचर टाइम यथ मज वी बाई टी। ठीक, देयरफॉर अगर कंपेयर करो R1 बाय R2 सो नेरे T1 बाय M1 इंटू R2 बदल ये T2 M2 खस। कोई शक, कोई तूफान मैंने अगर तो टेम्परेचर आसन गिवन तो दपो सर T1 तो T2 गिवन, मॉलिक्यूलर मास आसन गिवन सर M1 तो M2 दोन कैसन गिवन। तुम क्या करो सर, तुम करो ये इक्वेशन हेको आराम सान सँडित R1 बाय R2। अगर तुम आराम सान R1 बाय R2 द्राव तुम हेको ना ये पता, ये तुम R1 बाय R2 द्राव तुम हेको तथ R1 बाय R2 ये चीज वॉल्यूम ठीक है, ठीक। हाँ, ये समझ थो याद, R1 बाय R2 इज ऑलवेज V1 by T1 into V2 by T2। वो अगर तो योर R1 by R2 द्राव तम पत हेकु तुम वॉल्यूम सँडित ते टाइम सँडित, सो मसला कि हाँ, या अगर तो यमे ज गिवन गड तेल हेकु तुम R1 by R2 गडे सँडित तम पत हेकु यमो मज कह चीज सँडित अगर एग्जामिनर सँड। ठीक, वो रिमेंबर R1 by R2 is always equal to V1 by T1 into T2 by V2। हाँ, R1 by R2 can be kept equal to T1 by M1 into M2 by T2 root at constant pressure, or same R1 by R2 can be kept equal to P1 by P2 into D2 by D1 at constant temperature, or same this V1 by V1 R1 by R2 can be kept equal to D2 by D1 M2 by M1 but at constant temperature and pressure। वो डिपेंडिंग कंडीशन क्या है, ये गो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये गो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि R1 by R2, मगर पान R1 by R2 कथ बराबर सह मशरावन क्या V1 by T1 into T2 by V2, मगर यह कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर तम पत बे V1 by T1 into T2 by V2 मगर एट कांस्टेंट प्रेशर। गो डिपेंडिंग किस कंडीशन पे हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन R1 by R2 हमेशा इसके बराबर तो आएगा ही। हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा डिपेंड करता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाला, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये वाला। ठीक, अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है
तब ये वाला T2/D1 या M2/M1। आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। फाइन, विद दिस हमने ये सब टॉपिक भी कंक्लूड कर दिया। न्यूमेरिकल्स को नजर मार देना, ये अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ